Hello, am I audible, students? Yes, sir. Okay, so welcome to another session of endocrine system. Okay, and this will be the last session, and today we'll be discussing about the digestive tract hormones as well as reproductive system hormones and pineal body hormones. Okay, and we'll briefly discuss about the general mechanism of hormone action. Okay. So I'm sharing my slide. Are you able to see? Is it Yes, sir. visible? Okay. Just- And one of the most important endocrine gland is pancreas. So, how many types of hormones are secreted from pancreas? Do you know? It Three types. क्या क्या है वो? ये glucagon somatostatin. और कुछ है क्या? Actually, four types. One is insulin, another is glucagon, another is somatostatin, and lastly, Pancreatic polypeptide. exactly, pancreatic polypeptide. Okay, so endocrine pancreas. So pancreas is also called a mixed gland, right? Because in addition to digestive function, it secretes some important hormones. Okay, and they are crucial for normal regulation of glucose, lipid, and the protein metabolism. And what is the main function of somatostatin? Do you know? Inhibits The the growth growth hormone. hormone. Um, Which I saw betacells. Exactly. Actually, the function is not well known, but it is thought that it inhibits the function of growth hormone, right? And somatostatin inhibits the function of growth hormone, and pancreatic polypeptide. What is the function of pancreatic polypeptide? Sir, yes, tomato It inhibits inhibits somatostatin. somatostatin. Yeah. So, endocrine pancreas. Draw the figure of pancreas and then level the glands or cells that secretes particular type of hormones. कौन सा रीजन है जिसमें वो जो एंडोक्राइन सेल्स है वो पाए जाते हैं? पर्टिकुलर एक नाम है उसका, बोलो। islets of Langerhans. Islets of Langerhans. Islets of Langerhans. Islets of Langerhans. ये बार बार क्यों आ रहा है?
sorry. ओके, इसमें मैं खाली आइलेट्स को दिखा रहा हूँ। ओके, बाकी का सेल जो है वो तो एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं, तो मैं आइलेट्स को दिखा, यहाँ पे आइलेट्स को हाईलाइट करता हूँ। अल्फा सेल, डेल्टा सेल, this one are beta cell. Okay, or as well as some P cells, they are not well visible. Okay, P cells are not well visible. And this is the total structure of islets of Langerhans. Okay, ड्रॉ कर लो जल्दी जल्दी। जो यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे जो देखा जाता है पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एसिनी। एंड एसिनीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, राइट। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस होगा, सीक्रेट होगा, वो कहा जाएगा, ड्यूोडेनम में। यस, यहाँ से जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा वो डिओडेनम में जाएगा। सो बीटा सेल ज़्यादा अमाउंट में है, बीटा सेल लगभग 60%। यहाँ पे इंसुलिन, कुछ बुक्स में एमाइलिन भी लिखा हुआ है, इंसुलिन। अल्फ़ा लगभग 25%, अल्फ़ा ग्लूकागॉन एज वेल एज डेल्टा सेल्स, सोमाटोस्टैटिन एंड पीपी सेल, और इसको पी सेल भी बोलता है, पी सेल्स, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, and so another thing, pancreas is derived from the endoderm. It is derived from endoderm.
And what is the location of pancreas? Do you know? Behind the stomach. Yeah, it lies inferior to stomach in a band of duodenum. Right. सो यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंसुलिन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दे आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर. Now what do you mean by antagonistic? Opposite. Yeah. So insulin, how many chains are there in insulin? 2 chains. 2 chains. 2 peptide chains are there, and they are linked by Disulfide bond. Disulfide bond. disulfide bond. तो यहाँ पे देखो, अब इंसुलिन का मेजर जो फंक्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट मेजर फंक्शन क्या होगा कि इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, राइट. लेकिन कहाँ पर इन लिवर एंड Liver cells. muscles. Okay, so this is the first and the most important one. It promotes glucose uptake by the muscle cell and as well as the liver cells. Second one, it promotes protein synthesis. In tissue from amino acid, right. Third one, it increases synthesis of fat in the where adipose tissue. Adipose tissue. फ्रॉम कहाँ से, फैट को, फैटी एसिड से, राइट, फ्रॉम फैटी एसिड. एंड इंसुलिन also reduces the breakdown of oxidation breakdown and oxidation of fat. So these are some important functions of insulin hormone. और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि पोटेशियम अपटेक को इस सेल पे इंक्रीज कर देता है, ठीक है. और सो वो इन केस ऑफ बोथ लीवर सेल एंड मसल सेल, ये दोनों सेल में ही इंक्रीज कर देता है. एक डायग्राम बनाएंगे इसके थ्रू इंसुलिन एंड GLUT2 जो चैनल है उसका जो बेसिक मैकेनिज्म है
के ग्लूकोज एंड इंसुलिन के बीच जो रिलेशनशिप है वो हम दिखाएंगे। ओके, ग्लूकोज यहाँ पे है, इज द GLUT2, अंदर आएगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज यहाँ पे देखो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का नाम क्या है, ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज मतलब क्या करेगा वो, ग्लूकोकाइनेज मतलब क्या करेगा, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 कन्वर्ट करेगा। या ग्लूकोज इसके पास एक फॉस्फेट ऐड करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, राइट। इसका ऑक्सीडेशन के बाद एटीपी बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे K+ चैनल क्लोज्ड, तो इंटरसेलुलर अगर K+ एटीपी प्लस K+ चैनल ये क्लोज, सो यहाँ पे K+ जो है ये अंदर इसमें ज़्यादा रहेगा और ये डीपोलराइजेशन करेगा। यहाँ पे Ca2+ चैनल जो है वो ओपन रहेगा, ओके। तो कैल्शियम अंदर इंक्रीज, और तो वो पर्टिकुलर वेसिकल फ्यूशन में सेकेंडरी मैसेंजर वो काम करेगा, और यहाँ पे इंसुलिन इंक्रीज अमाउंट में इंसुलिन दिखा गया, ओके। So this is basically the mechanism of insulin secretion, how insulin is secreted, and it is a relationship between the insulin and GLUT2 transporter. So बीटा सेल K+ फॉर्म की बोलता हूँ, बीटा सेल जो है, बीटा सेल के पास बहुत सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इसलिए बीटा सेल के पास बहुत सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, जैसे कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सच एज GLUT2, तो इसका काम क्या है, वो ग्लूकोज इनफ्लक्स को कंट्रोल करता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज कैसे है, और तो इसको ग्लूकोज आने के लिए इसका एक जो मैकेनिज्म वो कंट्रोल करता है क्या, ये जो ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज अगर सेल में आ गया तो साथ ही साथ ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा बाय द एंजाइम ग्लूकोकाइनेज, ओके। एंड इसके बाद ये ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म करेगा एटीपी, और एटीपी ये क्या करेगा, एटीपी सेंसिटिव जो पोटेशियम चैनल है इसको इनहिबिट कर देगा सेल का। इसके चलते जो पोटेशियम चैनल है वो ऑफ होने के कारण सेल जो है वो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइजिंग स्टेट में चला जाएगा। इसके साथ साथ एक वोल्टेज गेट से चैनल ये डीपोलराइज में अगर चला गया तो यहाँ पर Ca2+ जो चैनल है कि अपने आप ओपन हो जाएगा, ओके। वापस कैल्शियम के बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम सेल के अंदर जाएगा, और यहाँ पे यू नो दैट इट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, और वहाँ पे जो वेसिकल है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो वेसिकल को क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने के बाद इसको एक्साइटेसिस होगा, एक्साइटेड के कारण वेसिकल से वहाँ पे जो वेसिकल के अंदर जो इंसुलिन है वो बाहर आ जाएगा, ओके। तो यह पे एक ड्रग है, ड्रग के नाम है सल्फोनाइल यूरिया। It stimulates the secretion by binding to this channel, ओके। तो ये इस चैनल में बाइंड करेगा, और इसके बाद इसका जो फर्दर मैकेनिज्म है इसको ब्लॉक कर देगा। ये ब्लॉक करने के बाद क्या करेगा, फर्दर जो मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाएगा, ओके। सो इंसुलिन सीक्रेशन के लिए टाइप 2 डायबिटीज़ जो है
टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये दिया जाता है. सो एक्चुअली सल्फोनाइल यूरिया ड्रग द स्टिमुलेट क्या इसका यह इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा. ठीक है, कैसे ना, वो एटीपी सेंसिटिव जो पोटेशियम आयन है चैनल है उसको बाइंड कर देगा. उसको बाइंड करने के बाद उसका जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देगा. ठीक है, तो इसका अगर ब्लॉक कर देना, ज़्यादा मात्रा में ये ब्लॉक होगा तो ये मेम्ब्रेन जल्दी ही डीपोलराइज स्टेट में चला जाएगा. डीपोलराइज स्टेट में चला जाने के बाद वो कैल्शियम धड़ाधड़ अंदर आएगा. अंदर आने के बाद उसके बाद वो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, जो इंसुलिन है वो बाहर आ जाएगा. ओके, सो जनरली इंसुलिन के जो टारगेट सेल है वो टारगेट सेल कौन कौन सा है. टारगेट सेल ऑफ इंसुलिन बेसिकली लिवर सेल एंड लिवर मसल एंड एडिपोज टिश्यू. Two important things I'm going to write here, students. First, remember, ये बहुत सारे MCQ में इसको मिलेगा. एलोक्सन. एलोक्सन is used to destroy beta cells. Okay. Sometimes they ask the question. Alloxan is used to destroy the beta cell, and cobalt chloride used to destroy alpha cell. Okay. Second one, student, glucagon hormone. So the main function is glucagon is to in the body is to prevent blood glucose level too low. Okay, so it stimulates blood glucose को है, इसका जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको ये ज़्यादा मात्रा में घटने नहीं देगा. तो ये जाहिर है, तो कैसे नहीं देगा, तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करने पड़ेगा, तभी ना ग्लूकोज मिलेगा. और तभी ग्लूकोज किस में मिलेगा स्टूडेंट्स, किस में मिलेगा, ब्लड में. ये सुनो. सो इट स्टिमुलेट्स, जैसे कि इंसुलिन में, इंसुलिन के केस में ये होता था क्या, इंसुलिन के क्या होता थे उसमें, देखो बोलो. ग्लाइकोजेनेसिस. यस, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो फेनोमेना है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस. नहीं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस ये होता है क्या, ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस. Okay, so basically glycogenolysis. And another function, it promotes the production of glucose from
एमिनो एसिड मॉलिक्यूल. So this process is now called Glyconeogenesis. this is now called glyconeogenesis or gluconeogenesis. So ये प्रमोट करता है और उसमें जो है इंसुलिन वो इनहिबिट करता है. दिस इज द डिफरेंस. एंड इट ऑल्सो या अगर इंसुलिन का जो रिसेप्टर है अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उस टाइप डायबिटीज को क्या बोलेंगे? बोलो. सेल में जो इंसुलिन का रिसेप्टर है ना, अगर उस रिसेप्टर में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उस वक्त जो डायबिटीज होगा उसको क्या मतलब क्या क्या डायबिटीज बोलेंगे? देखो, इंसुलिन डिपेंडेंट वन एंड नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट. ओके. सो एक तो डायबिटीज होता था ड्यू टू द दो टाइप का डायबिटीज होता है. बोलो, एक टाइप का क्या है? एक एडीएच का अगर कम हो जाए एडीएच तो उस वो टाइप 1 है और इंसुलिन का लिए जो है टाइप 2 है. एग्जैक्टली. सो अगर इंसुलिन रिसेप्टर जो है अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है सो वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो रिसेप्टर के प्रॉब्लम है. अगर सेल में ही जो जिस सेल से इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो दिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट. ओके. सो यहाँ पे क्या बोला मैंने? देखो, एक तो खुद पे खुद अगर वो जो सेल है टाइप 1 डायबिटीज जो होता है टाइप 1 डायबिटीज कब होगा? टाइप 1 डायबिटीज जो एक ऑटो इम्यून प्रोसेस. एडीएच लो हो जाए तो सुनो, टाइप 1 डायबिटीज में कब होता है? जब पैनक्रियाटिक बीटा सेल खुद पे खुद क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके. सो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स वो क्या सेंस करेगा? प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल. पैनक्रियाटिक बीटा सेल जो है वो प्लाज्मा ग्लूकोज को सेंस करते हैं, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को सेंस करता है. उसके बाद उसके जैसे दिखाया है ना पिछले फिगर में, तो दिखाया है ना इसमें, यही तो दिखा है. पैनक्रियाटिक बीटा सेल वो प्लाज्मा जो ग्लूकोज है उसको सेंस करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके रेस्पॉन्स मिलते ही वो इंसुलिन को रिलीज कर देगा. और इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज अगर होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वो उसमें कंप्लीट लैक ऑफ इंसुलिन होगा. ठीक है. और मैं बताता हूँ जो टाइप 2 एंड टाइप 1 में मेन जो डिफरेंस है. ठीक है. जब पूरा का पूरा मैं ये एक डिस्कस करने वाला था. नाउ टाइप 2 डायबिटीज इट इज मोर कॉमन देन टाइप 1. ओके. और ये जो यंग पीपल है इसमें ये होता है. यहाँ पे टिश्यू जो है दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू नॉर्मल लेवल ऑफ इंसुलिन. समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे जो टिश्यू हो जाता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है. ओके. सो ओवर मेनी ईयर्स द पैनक्रियास विल डिक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन इट सीक्रेट्स, बट दैट इज नॉट द मेन प्रॉब्लम when disease initiates. But many people with the type 2 diabetes do not know why they have it, although it is a very serious condition as well. तो यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है. वो जो ठीक से ये नहीं वो क्या कर रहे हैं? रेस्पॉन्स नहीं कर रहे. ओके. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज. वो इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ diabetes, right? So one is diabetes mellitus, one is diabetes insipidus. You know that. Now tell me, any problem? अब क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो. अब क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो. ठीक है. ठीक है. इसमें से मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा ही.
अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। तो ग्लूकागॉन जो है वो कैसे कंट्रोल होता है? सो ग्लूकागॉन वर्क्स अलोन विद द हार्मोन इंसुलिन टू कंट्रोल द ब्लड शुगर एंड कीप देम एट सर्टेन लेवल्स। सो ग्लूकागॉन इज रिलीज टू स्टॉप ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉपिंग टू लो, और उसको क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन को ये ठीक करने के लिए रिलीज होता है, ये ध्यान में रखो। और इंसुलिन कब रिलीज होगा? हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन। तो कुछ पेशेंट जो होता है वो इंसुलिन इंटेक्ट करने पड़ता है, राइट? वो कैसे? एक इंजेक्शन के तौर पे वो इंसुलिन लेता है, राइट? तो देखोगे उस पेशेंट का क्या होता है, ब्लड जो शुगर है, ब्लड शुगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। दे आर अनेबल टू द बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द इंसुलिन हार्मोन। सो बेसिकली तब बाहर से वो इंसुलिन प्रोड्यूस देना पड़ता है, वो सिंथेटिक इंसुलिन जो है। ओके, तो अगर बहुत सारे ऐसे हो गया कि वो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इंसुलिन ग्लूकागॉन सीक्रेट होने लगा तो क्या हो जाएगा? अगर पैनक्रियास में अगर ट्यूमर हो जाता है, रेयर ट्यूमर विच इज़ नोन एज ग्लूकागोनोमा, it can secrete excessive quantities of glucagon and this can cause diabetes mellitus. Okay, this can also cause diabetes mellitus. Okay, as well as some other symptoms such as weight loss and skin rash as well. Okay, और अगर बहुत लिटिल अमाउंट में ग्लूकागॉन अगर पाया जाता है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा तब? देखो, बोला ना हाइपोग्लाइसेमिया अगर है तो उसको क्या, तो कब वो रिलीज होगा ग्लूकागॉन? तो ग्लूकागॉन अगर ये लिटिल अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है तो ये हाइपोग्लाइमिया की कंडीशन में ही पेशेंट रहेगा ना। पेशेंट तो हाइपोग्लाइमिया की कंडीशन में ही रहेगा। क्या समझ में आ रहा है कुछ? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो अनिस्था। Yes, sir. बोलो, समझ आ रहा सर, लेकिन थोड़ा स्लो बोल। स्लो क्या? बोलो सर थोड़ा स्लो चलिए, एकदम ओके, जल्दी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो। टारगेट सेल, ये ग्लूकागॉन का जो टारगेट सेल है वो क्या है? बोलो क्या होगा? सेम एज इंसुलिन होगा। सो बेसिकली लीवर एंड एडिपोज टिश्यू ही है इसका। ओके, तो ये हो गया शायद। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना ज़रूर। थोड़ा स्पीड में जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे सिलेबस बाकी है और डिटेल में भी पढ़ाना है। ये बात मेन इंपॉर्टेंट बात है कि डिटेल में पढ़ाना है। सोमाटोस्टैटिन, इसको एसएस से लिखा जाता है, सोमाटोस्टैटिन। सो हाइपोथैलेमस से जब मैंने पूरा का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर वहाँ पर ड्रॉ किया था, हाइपोथैलेमस से भी एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका नाम क्या है? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ये देखा गया कि ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जो है इसका केमिकल जो नेचर है वो सेम विद द सोमाटोस्टैटिन। ओके, सो बट it is also reported that it is not only produced in pancreas and hypothalamus but also some cells of digestive tract as well. Okay, and one of the actions of somatostatin seems to suppress the release of other hormones from the पैनक्रियास। ओके, एक तो ग्रोथ हार्मोन को वो जीएच को वो तो इनहिबिट करता है, एज वेल एज जो पैनक्रियास से कुछ हार्मोन रिलीज होता है उसको भी थोड़ा सप्रेस करके रखता है ये।
सो इसका बहुत सारे जो, तो इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल में ऐसे अगर सब्सटेंस देखा गया तो उसका मतलब वो जो सीक्रेट वो सब्सटेंस है, इसका फंक्शन है वो इनहिबिट करेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हार्मोन को भी। ओके, और उसके बाद आ जाता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। सो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड inhibits the release of digestive secretion of pancreas. Both somatostatin and pancreatic polypeptide, they are relatively similar, okay, in function. और इसके लिए बहुत सारे तो जानकारी नहीं है ये दो हार्मोन, बिकॉज yes, these are still being studied. Okay, so students, डिसऑर्डर तो मैंने डिस्कस कर दिया। डिसऑर्डर क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। तो स्टूडेंट नाउ टेल मी कि डायबिटीज मेलिटस जो है ये हाइपरग्लाइसीमिया है और हाइपोग्लाइसीमिया है? हाइपरग्लाइसीमिया। यस, हाइपरग्लाइसीमिया। So the insulin dependent diabetes is caused by a failure of beta cell to produce the adequate amount of insulin. But non-insulin dependent diabetes, what is the reason behind the non-insulin dependent diabetes mellitus? To involve the failure of insulin to facilitate the movement of glucose into the cells. Okay, तो इन दोनों केस में क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड में ग्लूकोज हो जाएगा। ओके, तो इसके चलते कुछ समय ऐसा भी हो जाता है कि यूरिन के थ्रू भी ग्लूकोज निकल जाता है बाहर। ओके, और यूरिनेशन, एक्सेस अमाउंट में यूरिनेशन भी हो सकता है और बॉडी में बहुत सारे डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। एंड दिस कॉजेज एक्सेसिव थर्स्ट कॉल्ड पॉलीडिप्सिया। समटाइम दे आस्क द क्वेश्चन whether it is the symptom of diabetes mellitus or not. Okay, so polydipsia एक important उसका symptom है। जो पर्सन जिसका हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस, द पर्सन बिकम्स वेरी वीक एंड यहाँ पे जो फैट है, फैट के डिपोजिशन, डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा और फैट से बफर कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं कीटोसिस। एंड कीटोसिस अगर हो जाए तो कीटोन बॉडी, ये हेल्थ के लिए और बॉडी के लिए तो अच्छा नहीं है, डिस एसिडिक है एज वेल एज वेरी पॉइजनस, और ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी हाई हो जाएगा। ओके, तो इस समय वो पेशेंट जो होता है, पेशेंट को ये ग्लूकोज दे जाता है और ग्लूकोज दे जाने के बाद वो पेशेंट में उसका जो ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज का अमाउंट वो घट जाएगा। ओके, एंड व्हिच वन इज इनहेरिटेड, मच मोर इनहेरिटेड? बोलो, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। कैसे? और टाइप 1 का इंसुलिन डिपेंडेंट था, तो ওটা তো অনেকে জন্ম থেকেই থাকে, ইনহেরিটেড হয়। देखो, एक में क्या हो रहा है, जो सेल्स है पैनक्रियाटिक बीटा सेल, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है क्या? इंसुलिन। और दूसरा जो क्या है, इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इसके मतलब है इंसुलिन, वो जो ग्लूकोज, इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन कैसे, देखो ये बात पहले समझो कि इंसुलिन का काम क्या है। ब्लड में ग्लूकोज है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो सेल के अंदर लाना है। ओके, इसका यही काम है ना। तो अगर ये इंसुलिन जो है वो ये
ये इसका ये फेल्यूर है कि ये जो ग्लूकोज है इसको सेल का अंदर नहीं ला पा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बाद में भी हो सकता है कि पहले से होता है। और ये तो जो इंसुलिन का जो सेल है ये ऑटो इम्यून टाइप का है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के टाइप का है। सो इट इज़ मोर हेरिटेबल। कौन सा? इंसुलिन इंडिपेंडेंट जो है, ठीक है, ये जो है इज मच मोर हेरिटेबल, ठीक है। और कैसे? इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव टाइप, रिसेसिव टाइप, इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव टाइप। सो दो टाइप का डायबिटीज मेलिटस अच्छे से समझो। और हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन, दो कंडीशन पे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया বলছি ওটা আরেকবার বলবে একটু বুঝতে পারলাম না। पहले जो इंसुलिन डिपेंडेंट है इसमें क्या है, जो बीटा सेल है दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द इंसुलिन हार्मोन। वो इट इज थॉट दैट कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप का है, जो सेल है वो डिसफंक्शन हो रहा है एंड ड्यू टू मे बी ड्यू टू द ट्यूमर एंड अदर थिंग्स और डिसफंक्शन इन दिस पर्टिकुलर बीटा सेल। एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट के कारण क्या है, वो जो बाहर ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर लाना है, यही इसका काम है ना इंसुलिन का। तो वो मतलब वहाँ पर जो ग्लूट चैनल है यहाँ पे, वो ग्लूट चैनल पहले तो फ्यूजन स्टेट में नहीं रहता है, वो इंसुलिन के कारण वो फ्यूज हो जाता है सेल में और यहाँ पे रिसेप्टर में मेम्ब्रेन में बैठ जाता है। उसके बाद ये इसके बाद जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर आता है। यस, तो समहाउ ये क्या हो रहा है, वो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। समहाउ इसमें भी ड्यू टू द रिसेप्टर और अदर थिंग्स। ओके, सो ये ज़्यादा हेरिटेबल है, ये ज़्यादा इनहेरिटेबल है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हाँ बोलो, हाइपोग्लाइसीमिया जो है, हाइपोग्लाइसीमिया ये दो कंडीशन में हो सकते हैं। कौन कौन सा कंडीशन में हो सकता है? आइदर हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन और वेरी लो अमाउंट ऑफ ग्लूकागॉन। ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है? हाइपोग्लाइसीमिया हाँ सही है। तो सही है। ओके, तो एक कंपैरिजन चार्ट देखो कि यहाँ पे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का, ठीक है। तो पहले बोलो, ग्लूकोज सिंथेसिस, सॉरी ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंसुलिन क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा। ओके, ग्लाइकोजन एज वेल एज द एमिनो एसिड, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोज अपटेक और पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन ग्लूकागॉन इसको क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका नो रेस्पॉन्स रहेगा, लेकिन ग्लाइकोजेनोलाइसिस वो कराएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, सॉरी, ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन कराएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन कराएगा? ये ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के करेगा, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकागॉन करेगा, ये ध्यान में रखो। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और ये 2 मिनट देख लो, ठीक है, ये स्लाइड्स वगैरह देख लो, मुझे बार बार बोलो कि कौन सा स्लाइड दिखाना है ज़्यादा मात्रा में, वो मैं दिखा दूंगा। उसके बाद जो जीआई ट्रैक्ट हार्मोन है वो मैं डिस्कस करूँगा।
एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देख लो, पॉलीफैजिया। पॉलीफैजिया कभी कभी ये होता है, जो डायबिटिक पेशेंट है उसका बहुत हंगार होता है, ठीक है। तो एक्सेसिव अमाउंट में अगर हंगार हो जाता है ड्यू टू द डायबिटीज, तो इट इज नोन एज पॉलीफैजिया। ओके, पॉलीयूरिया के मतलब क्या है? पॉलीयूरिया, frequency of menstruation. या वेरी गुड। ओके, सो कुछ टर्मिनोलॉजी, ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है ये ध्यान से दिखना। बोलो, किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताना। Sir, बोलो। can we transplant pancreas? ट्रांसप्लांट पैनक्रियास देखो, Possible है? हाँ देखो एक बार पहले कि लीवर अगर ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ये तो जानते हो, लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हो, और वो भी बहुत सक्सेसफुल होता है। ओके, इसके कारण क्या है? MEC1 का मतलब एक्सप्रेशन लीवर में कम है, लिवर सेल में। और क्या है? बेसिक क्वेश्चंस में है रीजनरेशन। अगर कुछ सेल में पाया जाता है कुछ जगह में, तो उसमें लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट लीवर में रीजनरेशन होता है, सो इट इज़ ईजीबल। एंड MSC इज डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, वो तो एक ग्राफ्ट रिजेक्शन के वो तो है ही। सो या व्हाई नॉट, पैनक्रियास ट्रांसप्लांट हो सकता है, सब कुछ ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन कितने अमाउंट पे वो सक्सेसफुल होगा, इट इज़ क्वेश्चनेबल एक्चुअली। ये हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है, ठीक है, ये भी होता भी है, लेकिन कितना सक्सेसफुल है, इट इज़ क्वेश्चनेबल। Okay students, now we'll be discussing about any more questions students from this portion. If not, then I'll be moving to the next session. Just a minute. Students, tell me, can you name some GI tract hormones? Very good, very good. So basically इसको तीन, very good, yeah. So उसको तीन अलग अलग फैमिली में इसको डिवाइड करा जा सकता है अपने हिसाब से। ओके, फर्स्ट वन गैस्ट्रिन फैमिली। गैस्ट्रिन फैमिली में कौन कौन है? गैस्ट्रिन है एंड CCK है, CCK कोलेसिस्टोकाइनिन। ओके, सिक्रेटिन फैमिली, इसके अंदर सिक्रेटिन, VIP, GIP, ठीक है। P फॉर भेसो, V फॉर भेसो, I फॉर क्या है? Inhibitory. या, और P फॉर Peptide. सो भेसो एक्टिव, इनहिबिटिंग नहीं है, भेसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, ओके, भेसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, ओके। वैसे ही GIP हार्मोन, इसका क्या नाम होगा, फुल फॉर्म क्या होगा? यह होगा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ओके, ये हो जाएगा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। तो VIP का फुल फॉर्म क्या होता है? VIP वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड,
vasoactive intestinal peptide. ओके, तो ये हो गया. अब देखो एंड अदर्स, इसमें कुछ ही लिखूंगा मैं. ग्रेलिन, मोटेलिन, सोमाटोस्टेटिन इसमें भी होता है, डिस्कस किया है. और भी है जैसे बॉम्बेसिन है, एज वेल एज सब्सटेंस पी. ओके, अब गैस्ट्रिन के बारे में बात करते हैं. गैस्ट्रिन क्या है, क्या काम है इसका. गैस्ट्रिन, सो स्टोमक जो है, स्टोमक से यहाँ पे जो जी सेल होता है, स्टोमक से जी सेल से ये सीक्रेट होता है. क्या होता है? जी सेल से. ओके, और इसका मेन फंक्शन क्या है बोलो. करता है स्टोमक का पेप्सिन को सिक्रेशन करना. एग्जैक्टली. सो देखो, तो इसके अगर स्टोमक से इसका रिलेशन है, ठीक है, दिस गैस्ट्रिन पैराइटल सेल रिसेप्टर, किसका रिसेप्टर ना, पैराइटल सेल का रिसेप्टर. ठीक है, तो पैराइटल सेल मतलब क्या है, उसका क्या फंक्शन है. HCl रिलीज करता है. तो एसीएल रिलीज करने के साथ गैस्ट्रिन का कुछ फंक्शन होता है कि नहीं. ओके, सो एसिड सिक्रेशन एक फंक्शन होता है उसमें. मतलब इंटरसेलुलर अगर कैल्शियम हाई है तो वो गैस्ट्रिन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि नहीं. उसके बाद जो पैराइटल सेल रिसेप्टर उसको स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिन, देन इट रिलीजेज एसिड. सो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन इज इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड एंड एज वेल एज पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक जो एसिड है उसको ये स्टिमुलेट करेगा. ओके, एज वेल एज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा. अनिस्ता ठीक है, स्पीड क्या ठीक है अनिस्ता. यस सर. एज वेल एज इसका जो मेन वन ऑफ द मेन फंक्शन इज दैट कि इट स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक मोटिलिटी. इसमें भी इसका फंक्शन है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एट गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन, यू नो दैट कि कार्डियक स्फिंक्टर उसमें होता है, तो इसको भी कंट्रोल करता है कौन, गैस्ट्रिन. ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है, इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो हुआ इट इज़ मोर देन इनफ. सो ये है गैस्ट्रिन का किस्सा. नेक्स्ट कोलेसिस्टोकाइनिन. ओके, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेमिन बाइल, सिस्टोमिन सैक, काइनिन मीन मूव. तो मतलब क्या है, टू मूव द बाइल सैक. सो ग्रैनुलर म्यूकोसल सेल्स ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम में ये पाया जाता है. और आई सेल्स, ग्रैनुलर म्यूकोसल सेल्स ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम. ओके, तो स्टिमुलेट होता है एसिड, प्रोटीन, फैट की वजह से. और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन हम लोग देखेंगे. तो फंक्शन ये देखो, फर्स्ट क्या है, टू मूव द बाइल सैक. और बाइल सैक मतलब सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर. और अगर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या रिलीज होगा स्टूडेंट, बताओ. अगर बाइल. यस, सीधी बात है, बाइल रिलीज हो जाएगा. एज वेल एज इट स्टिमुलेट द पैनक्रियाटिक सिक्रेशन.
okay, as well as it stimulates the pancreatic secretion and inhibit gastric acid secretion. तो कुछ जो मेन फंक्शन है ये याद रखना है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ऐसे ही कि पूरा का पूरा तो नहीं याद रहेगा, ये तो सीधे सा बात है. ओके, तो ये इसका मेन फंक्शन है ना. सिक्रेटिन स्टूडेंट, सिक्रेटिन के एक अलग सा इंपॉर्टेंस है, क्या है बता पाओगे क्या? ये पहले दिन ही मैं बताया था, बोलो. याद नहीं है? ऐसे कैसे चलेगा? इट इज द फर्स्ट हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन. और किसने डिस्कवर किया था? बेलिस एंड स्टर्लिंग ने, राइट. लगभग 1902. ये आर्जेंटिफिन सेल्स और एस सेल से रिलीज होता है. ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसका? स्टिमुलेट्स the secretion of pancreatic juice rich in HCO3 minus, right, as well as inhibits the gastric acid secretion and stimulates the contraction of pyloric sphincter. स्टूडेंट्स, ये स्फिंक्टर का काम क्या है? बोलो. से वो जो बोलास है वो ड्यूडेनम में जाता है. स्फिंक्टर का मेन फंक्शन क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्फिंक्टर? सर ये ब्लड ड्यूडेनम से स्टमक के अंदर. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एकदम सही आंसर. नाउ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, उसको बोलता है क्या? जीआईपी. एक बार समझिएगा ये प्लस. हाँ जरूर. Okay, now GIP, K cells of jejunum and duodenum. ये किसका पार्ट है? jejunum and duodenum. स्मॉल इंटेस्टाइन. Yeah, and it is initially called entero. It actually discovered as a factor in the extract of intestine that inhibited gastric motility and secretion of acid. It is the main function. Inhibitory किसका inhibitory? Gastric motility and secretion of acid. Okay students, इसका एक और फंक्शन है जो है ये इंसुलिन सिक्रेशन को एनहांस करता है. ओके, इंसुलिन सिक्रेशन को एनहांस करता है. ये हो गया. नाउ भेसो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड VIP, म्यूकोसल सेल्स इन जेजुनम.
it stimulates vasoactive intestinal polypeptide, मतलब stimulates intestinal function. नाम से ही काम याद रखो, फंक्शन इंटेस्टिनल सिक्रेशन, सॉरी इंटेस्टिनल फंक्शन नहीं, इंटेस्टिनल सिक्रेशन किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर एज वेल एज वैसोएक्टिव मतलब क्या है, वैसो डायलेशन करेगा. और वैसो डायलेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इंक्रीज बीपी और डिक्रीज बीपी, राइट, डिक्रीज बीपी और इंक्रीज बीपी. वैसो डायलेशन समझ रहे हो, डायलेशन का मतलब क्या है, बोलो. तो ब्लड वेसल को वाइड, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, थोड़ा धीरे जाएगा कि नहीं, अगर वाइड करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा उसके ऊपर, तो मतलब इंक्रीज बीपी हो जाएगा. और डायलेट कर गया उसका मतलब डिक्रीज बीपी. ओके, एंड एज वेल एज द इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, इसका एक और फंक्शन है. ओके, सो दिस आर द मेन हार्मोन्स. एक्चुअली सोमाटोस्टेटिन का फंक्शन मैंने पहले डिस्कस कर दिया ना. मोटिलिन, एक और हार्मोन है मोटिलिन. थोड़ा हाँ जल्दी करो थोड़ा, ये तो कुछ नहीं याद करने के लिए है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव, कुछ समझने के लिए चीज़ नहीं है. ठीक है. ओके ना, मोटिलिन ये पाया जाता है किसमें, एंडोक्रिनोसाइट्स और एमोसेल्स in the mucosa of proximal small intestine. मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कौन सा रीजन. पर्टिकुलर ये जो रीजन है, ठीक है, ये इस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. और मोटिलिन का फंक्शन क्या है, मोटिलिन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन कंट्रोलिंग द पैटर्न ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द अपर जीआई ट्रैक्ट. तो अपर जीआई ट्रैक्ट इसका जो मतलब माइग्रेशन है, इसका जो मूवमेंट है, इसको ये हेल्प करता है. ओके, एंड ये पेप्सिन को इनहिबिट करता है, स्टिमुलेट करता है, पेप्सिन हार्मोन को ये स्टिमुलेट करता है. तो ये एक मोटिलिन कहाँ पाया जाता है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ. क्वेश्चन किससे आएगा, ग्रेलिन से क्वेश्चन आएगा. ग्रेलिन बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है. ग्रेलिन ग्रे मतलब ग्रोथ. ओके, एंड एंडोक्राइन सेल्स इन द स्टमक, सोर्स कहाँ है, एंडोक्राइन ग्लैंड इन एंडोक्राइन सेल्स इन स्टमक. तो ये सीक्रेट होता है कब, व्हेन वन इज हंग्री, हंगर हार्मोन भी बोल सकते हैं इसको. तो ये सीक्रेट होता है जब कोई भी पर्सन हंग्री होता है. सो इट एक्चुअली एक्ट्स ऑन द hypothalamus to stimulate feeding. ओके, तो मैं दिखाता हूँ कैसे करता है. स्टोमक, एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है, इससे कौन रिलीज होता है, इसमें
ग्रेलिन, राइट, ब्लड के थ्रू ये पे पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी के इसमें हाइपोथैलेमस, राइट, हाइपोथैलेमस। तो इसमें हाइपोथैलेमस में भी इसका सिग्नल पहुंचता है। और भी है गुआनाइलिन, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सब्सटेंस पी ये कभी कभी देता है बट रेयर। ये पूरा का पूरा जो जे ट्रैक्ट है इसमें पाया जाता है सब्सटेंस पी, और ये मोटिलिटी इंक्रीज करता है, ये मोटिलिटी इंक्रीज करता है। Okay, students, I think it is clear to you all. Now tell me, कोई भी चीज़ दोबारा बोलना है तो मुझे बता देना। स्टूडेंट एक बार देख लो, कॉपी को एक बार देख लो, और फिर मुझे बता देना कि कोई भी चीज़ दोबारा बोलना है। ओके, हो गया कशिश? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. सुष्मिता? ठीक है। ओके, तो ये पे देखो, दिस वन इज pineal gland। ये जो रीजन है ये थर्ड वेंट्रिकल। ओके, so actually pineal gland also called epiphysis, right? Epiphysis cerebri. So pineal gland, it is a
cone shaped gland. ओके मतलब कॉनिकल स्ट्रेट. सो इसका जो मेन हार्मोन है, उसका मेन हार्मोन क्या है? मेलाटोनिन, राइट? मेलाटोनिन. और मेलाटोनिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसके ऊपर? नींद. या स्लीप वेक साइकिल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट एज वेल. पीनियल ग्लैंड में जो सेल्स होता है इसको बोलते हैं क्या? पीनियल ग्लैंड में जो सेल्स होता है उसको बोलते हैं क्या? Pinealocytes. या पिनियलोसाइट्स. ओके. सो स्ट्रक्चर तो देख ही चुके हो. मेन फंक्शन देखो. तो इसका जो मेन फंक्शन होता है इस ग्लैंड का, एक है सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन मेलाटोनिन एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन. और ये जो नर्वस सिस्टम है उसको, और उसके साथ जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिग्नल, इसके एक कम्युनिकेशन, इसके कम्युनिकेट कराते हैं. मतलब नर्वस सिस्टम का जो सिग्नल होता है इसको कन्वर्ट करता है एंडोक्राइन सिग्नल में. नर्वस सिस्टम का जो सिग्नल्स होता है इसको कन्वर्ट करता है एंडोक्राइन सिग्नल्स में. ओके. और एज वेल एज कॉजेज फीलिंग ऑफ स्लीपीनेस, इन्फ्लुएंस द सेक्सुअल डेवलपमेंट. ओके, डेवलपमेंट. सो ये इसका मेन फंक्शन है. तो समटाइम्स एक चीज़ होता है कि जेट लैग. डू यू नो जेट लैग क्या होता है? जेट लैग क्या होता है स्टूडेंट्स? जेट लैग मतलब कोई भी पर्सन, मतलब इंडिया से अमेरिका गया है, अमेरिका. ठीक है. तो इसका जो टाइम पीरियड वो तो डिफरेंट है इंडिया और अमेरिका का. सो उसमें अगर अमेरिका के जाने के बाद वो ठीक टाइम से सो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोने का टाइम वो अलग है. मतलब इसमें इधर जो अब जो इंडिया में इट इज़ ऑलरेडी 9:20, वो अमेरिका का टाइम थोड़ा सा आगे होता है, राइट? बोलो अमेरिका का टाइम क्या होता है इसके हिसाब से? मुझे नहीं पता है, शायद थोड़ा सा आगे होता है. तो मतलब हाँ बोलो. So 4 hours आगे. ओके, 4 आवर्स आगे होता है. तो ये 4 आवर्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. तो जो पर्सन गया है उसका थोड़ा पहले कुछ दिन में जिसको ये इंडिया के हिसाब से उसका जो 24 आवर्स का एक साइकिल होता था. मतलब खाना पीना सोना ये ऐसे करके फिर रिपीटेशन होता है. इसके अलावा वो जो स्लीप साइकिल है उसका भी कुछ भी जीन भी है, क्लॉक जीन एंड अदर सम जीन्स, दे प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन टू मेंटेन द स्लीप साइकिल. सो ये जो वो पर्सन अमेरिका क्या है, वो 4 आवर्स का डिफरेंस है. तो कुछ दिन उसको ऐसे लग जाएगा. ठीक है. वो जो उसका जो एक अलग सा साइकिल होगा उसको मेंटेन करने के लिए. ओके. एंड पीनियल ग्लैंड आल्सो नोन एज थर्ड आई, राइट? थर्ड आई. एंड कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसमें ये थर्ड आई प्रोमिनेंट होता है, जिसे दिखता है बाहर से. जैसे कि हुआ टुआटारा, राइट? न्यू गिनिया में ये देखा जाता है, न्यू गिनिया. ओके, टुआटारा. सो इट इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई. एंड टुआटारा दिखाया जाता है, टुआटारा में ये प्रोमिनेंटली दिखाया जाता है थर्ड आई. ओके. सो जनरली वी हैव ऑल्सो डिस्कस द
cells present in the pineal gland, they are the pinealocytes, and sometimes also the astrocytes as well. And यहाँ पे एक फिगर मैं ड्रॉ करूँगा. ये है गोल्गी बॉडीज, ये है ER. और ये क्या, ये क्या होगा बोल, है बोल. So that was 4, it's 9. I was mistaken. बोलो. That was not 4 hours, it was 9. ओके व्हाटएवर, नो प्रॉब्लम. बट जनरली ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही कि जेट लैग का मतलब यही है. ओके तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. और वो जो उसका दिन मेंटेन होगा, जो 9 आवर्स के हिसाब से वो उसका मेंटेन होगा, पूरा जो स्लीप वर्क साइकिल, उसमें भी हेल्प करेगा कौन? ये मेलाटोनिन. ओके ये मेलाटोनिन. नाउ हियर यू कैन सी ये क्या है, ये होगा ये गॉल्जी, ये ईयर. तो ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर? न्यूक्लियस. वेरी गुड, न्यूक्लियस, राइट. और इसको देखो प्रोसेसेस, ये शॉर्ट प्रोसेस है और ये है लॉन्ग प्रोसेस. सो बेसिकली क्या है, ये जो पिनेलोसाइट्स है, दीज आर द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. ओके दीज आर द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. और इसके पास डेंड्राइट लाइक शॉर्ट प्रोसेसेस भी होता है. तो इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे इसका टाइप्स भी है. जैसे एस्ट्रोसाइट्स ऐसे दिखता है, एस्ट्रोसाइट्स, ये है एस्ट्रोसाइट्स. और ये एस्ट्रोसाइट्स दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पिनेलोसाइट्स. एंड इसके साथ पिनियल ग्लैंड के साथ लाइट का भी एक रिलेशनशिप है. लाइट, बोलो क्या है इसका रिलेशन है? पता है क्या? Inversely proportional. एग्जैक्टली. तो अगर लाइट ज़्यादा मात्रा में नहीं है तो ये ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होगा, और अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये इसका सीक्रेशन थोड़ा घट जाएगा. ओके और ये जो बोल रहा हूँ मैं स्लीप वेक साइकिल, इसका एक और अलग नाम है. क्या नाम है इसको बोलो? Circadian rhythm. यस, सर्कडियन रिदम. और ये जो सर्कडियन रिदम है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे अलग अलग रिदम भी हो सकते हैं. जैसे कि कुछ सीजनल रिदम होता है, राइट. जैसे कि कुछ पर्सन के, स्पेलिंग बता देना थोड़ा. और कुछ सालों पहले 2 साइंटिस्ट को इसी के कारण नोबेल प्राइज भी मिला था, सर्कडियन रिदम, राइट, सर्कडियन रिदम. तो इसमें एक और है, ये तो स्लीप वेक साइकिल भी उसका कंट्रोल करता है, एज वेल एज सीजनल कुछ रिदम भी होता है, उसको बोलता है क्या, सर्का एनुअल रिदम्स. उसके चलते ये कोई उस सीजन में हाई और लो इस मात्रा में पाया जाता है. क्योंकि कुछ एनिमल में अगर देखा जाए, ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन एंड जैसे कि कुछ बर्ड्स के केस में देखो कि उसका प्लमेज होता है. व्हाट इज प्लमेज? व्हाट इज प्लमेज? क्योंकि बर्ड्स के अलग अलग कलर, फिदर कलर अलग अलग समय में देखा जाता है, ठीक है, कुछ बर्ड्स का, एंड इट इज़ अ सेक्सुअल बिहेवियर, राइट. तो
उसका एक पर्टिकुलर सीजनल वे में उसका रिप्रोडक्शन होता है, कुछ बर्ड्स में, कुछ एनिमल्स में, एक्सेप्शन इन ह्यूमन। तो ये होता है, तो उस समय उस पर्टिकुलर एनिमल में मेलाटोनिन हार्मोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो ये सीजनल वे में भी उसको रेगुलेट करता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मेलाटोनिन को एक और हार्मोन बोलता है, वो उसको स्लीप हार्मोन, राइट? हार्मोन ऑफ डार्कनेस। Yeah, hormone of darkness and sleep hormone। तो इसके चलते कुछ हो सकता है, जैसे स्लीप, अगर इसका डिसफंक्शन हो गया तो स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है, राइट? तो एज के चलते चलते इंसोम्निया जो है वो ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तब इसका थोड़ा फंक्शन में गलतियाँ देखा जाता है। बेसिकली ये हार्मोन तो सर्कैडियन रिदम को जो है कंट्रोल करता है, और मैंने एक पर्टिकुलर जीन का नाम बताया, बोलो वो क्या है? क्लॉक जीन, राइट? व्हाट इज दैट? क्लॉक जीन। सो क्लॉक जीन दे कंटिन्यूअसली ऑसिलेट थ्रू आउट द डे, और क्लॉक जीन तो एक पर्टिकुलर रीजन है क्लॉक ब्रेन के अंदर, तो किस में है क्लॉक? सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस जो है, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, वो रीजन में क्लॉक एक पर्टिकुलर रीजन होता है, तो उसमें क्लॉक चीन होता है। क्या होता है? क्लॉक चीन। वो क्लॉक चीन बेसिकली ये पूरे के दिन के अंदर जो फंक्शन होता है वो रेगुलेट करता है। एक पर्टिकुलर मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर टाइम है, मान लो कि खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद कुछ यूट्यूब वीडियो देखने का इसका हैबिट हो गया। तो हैबिट कैसे जनरेट होगा? तो बार बार वही दिन का समय वही काम करने के ये एक उसमें एक इच्छा आता है, ठीक है? तो ऐसे करके उसका एक हैबिट हो गया, ठीक है? लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पढ़ने का हैबिट क्यों नहीं होता ज़्यादा मात्रा में? ओके, तो ये आई थिंक इट इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर यू ऑल। समझ में आया पूरा चीज़? बोलो Yes, sir. रेशमा। है। ओके, now reproductive system hormones, right? दादा Yes, tell me, उसी सेरोटोनिन का कौन रिलीज है? what is serotonin? First of all, what is serotonin? Tell me. एमिन हार्मोन। अरे सेरोटोनिन के एक और सेरोटोनिन के एक्चुअली सेरोटोनिन को हार्मोन बोल सकते हो, लेकिन व्हाट इज सेरोटोनिन एक्चुअली है क्या? बोलो, जैसे गबा हुआ वैसे ही प्रिकर्सर ऑफ नहीं, वो क्या है? Neurotransmitter. Exactly, it is basically a neurotransmitter. So actually it secretes on particular brain cells. Okay, so इसके सेरोटोनिन के बहुत सारे फंक्शंस है। ये एक्चुअली हार्मोन एक्चुअली नहीं बोल जाता, कुछ बुक्स में भी और कुछ साइंटिस्ट ने इसको हार्मोन टर्म तो दिया है, लेकिन ये प्रॉपर वे में हार्मोन नहीं कह सकते। लेकिन सेरोटोनिन हमारा जो फीलिंग है, मूड है, इसके ऊपर इसका बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है? मूड स्विंग के ऊपर, और हमारा पर्टिकुलर ईटिंग एज वेल एज स्लीपिंग, हैप्पीनेस, तो इसके ऊपर भी सेरोटोनिन के बहुत सारे फंक्शन है। सो बेसिकली इट इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर, ओके?
वैसे ही हो गया न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे कि लेप्टिन, सेरोटोनिन, GABA. These are all the fantastic neurotransmitter. And what is the main function of the neurotransmitter? क्या है? transmit signals Across across the neurons. Yeah. So first here we'll be discussing about the female reproductive organ hormones. Okay. तो इसका मेन क्या है? पहले हम लोग ओवरी को देखेंगे. ओवरी राइट. सो इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन organ. So ovary is a dynamic organ that undergoes various changes during its changes in its structure and function, and during two process, two times. One is gametogenesis, मतलब क्या है? Formation of, and another is स्टेरॉइडोजेनेसिस. एक तो ओवम मतलब फॉर्मेशन हो रहा है सेकेंडरी साइड, एंड स्टेरॉइडोजेनेसिस मतलब स्टेरॉइड जो हार्मोन होता है उसका जो सिंथेसिस होता है उस समय इसको बहुत सारे चेंजेस आता है. ओके. सो ओवरिन फॉलिकल, इसका ओवरी का फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी इज क्या है? ओवरियन Graphian follicle. ovarian follicle, yeah, or Graafian follicle. Ovarian follicle and Graafian follicle. So follicle is a non-renewable structure and whose health and the number determines both the reproductive potential as well the reproductive lifespan. Okay, so किसी भी वुमेन का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन होता है, किसी के भी 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, तो इसमें डिफर करता है. ठीक है, ड्यू टू दिस पोर्सन. और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फिगर है, इसमें बहुत क्वेश्चन भी आता है. सो एक स्ट्रक्चर देखो, मैं एक ऐसे ही रफ फिगर यहाँ पे बनाता हूँ. ठीक है. ঠিক আছে. ये और भी फोल्ड होता है. ओके. नाउ हियर these are blood vessel, right? These are blood vessels. ये पे छोटे छोटे जो फॉलिकल होता है, छोटे छोटे, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल. प्राइमोर्डियल follicles. या ये जो है, ये इसमें देखो, ये जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल. उसके बाद ये देखो, इसमें एक और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ये क्या हो गया? दिस इज नाउ प्राइमरी फॉलिकल. सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से होगा प्राइमरी फॉलिकल्स. ओके. और ये जो है, ये जो थोड़ा सा लार्ज दिख रहा है इसमें, दिस आर ऑल क्या है? डेवलपिंग फॉलिकल. डेवलपिंग फॉलिकल. ओके. ये क्या है? ये मैच्योर हो गया. अब मैच्योर हो गया, इसको क्या बोलेंगे? मैच्योर हो गया तो Graafian follicle. या Follicle. ग्राफियन फॉलिकल.
ग्राफिन फॉलिकल। इसको ग्राफिन फॉलिकल, इसमें क्या है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर? सेकेंडरी oocyte। oocyte, ओके, नाउ ये लिबरेट हो गया कौन? वो oocyte को ओवम कब बोलेंगे? ये ओवम एक्चुअली बोलता है, लेकिन ये इनएप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी है। ओवम कब बोलेंगे कि उसका प्रॉपर जब वो एक तो एयर स्टेज में रहता है, तो वो एयर स्टेज कब जाता है? तो स्पार्म अगर इसको इसके अंदर नहीं गया तो वो एयर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इमेच्योर ओवम भी बोल सकते हो, जो भी है, तो छोड़ दो, ओवम ही बोलो। ये सेकेंडरी oocyte ये हो गया। नाउ ये क्या है स्टूडेंट्स? ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है ये क्या है? एक्चुअली इसमें डॉट स्पेस है, बोलो ये क्या है? अरे ये कॉर्पस लुटियम है, हार्डली कॉर्पस लुटियम, और ये है पूरा मैच्योर्ड हो गया। अब कुछ चेंजेस ऐसे, कॉर्पस लुटियम। सो ये क्या है? कॉर्पस लिकेंस। एब्लिकेंस। ओके, सो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, जल्दी से ड्रॉ करो। सो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? जनरली ऑरिजिनेट होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से। ओके, देन फर्दर वे में पीजीसी जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, वो प्रोलिफरेट करके एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाएगा, वो है oocyte नेस्ट, oocyte सेल। वो oocyte नेस्ट से देन जो बनाएगा वो हो जाएगा क्या? ऊगोनिया। ऊगोनिया डिवाइड करेगा, डिवाइड करते करते जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइप पे वो मियोसिस में जाएगा, और मियोसिस में जाएगा और वो ऊगोनियल एट्रेसिया हो जाएगा। एट्रेसिया मतलब एक टर्मिनोलॉजी है, एट्रेसिया इसका मतलब है क्या? सेल डेथ थ्रू एपोप्टोसिस, ठीक है। और देन इसका जो मतलब ऊगोनिया जब मियोसिस में एंट्री ले रहा है, ऊगोनिया जब मियोसिस में एंट्री ले रहा है, तो इसके एक पर्टिकुलर ट्रिगर करते हैं कौन? रेटिनोइक एसिड, ठीक है। ये समटाइम दे आस्क द क्वेश्चन, रेटिनोइक एसिड ऊगोनिया को ट्रिगर करता है, रेटिनोइक एसिड, देन ये मियोसिस में चला जाता है, मियोसिस। ओके, देन ऊगोनिया प्रोफेज स्टेट में चला जाता है, और एक पर्टिकुलर स्टेट में ये अरेस्ट हो जाता है। कौन सा स्टेट है ये? कौन सा स्टेट में ऊगोनिया जाकर अरेस्ट हो जाता है? मतलब वो प्राइमरी oocyte तो हो गया, ऊगोनिया जब मियोसिस में आ गया तो वो प्राइमरी मियोसिस हो गया, सॉरी प्राइमरी oocyte हो गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो मेरी बात? ऊगोनिया मियोसिस के थ्रू प्राइमरी oocyte बना दिया, लेकिन वो प्राइमरी oocyte जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेज में क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। वो कौन सा स्टेज है मियोसिस का जिसमें ये अरेस्ट होता है? पता है क्या? पता नहीं। प्रोफेज, प्रोफेज तो है, ऐसे बच्चे जैसे आंसर बोलना है तो क्या नहीं बोलना। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 ये भी सही आंसर नहीं है। डिप्लोटिन स्टेज बताओ ना, डिप्लोटिन स्टेज ये क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन था। तो डिप्लोटिन स्टेज पे वो जाकर अरेस्ट हो जाता है, और वो अरेस्ट जो है डिप्लोटिन स्टेज में, वो कब अरेस्ट ये छोड़ता है? बोलो। स्पर्म आने के बाद। स्पर्म आने के बाद नहीं है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी में क्या होगा? प्यूबर्टी में क्या होगा? प्यूबर्टी में क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका मतलब क्या है? कुछ हार्मोन हार्मोन। कि नहीं, राइट। सो वो हार्मोन की कारण ये जो उसका पर्टिकुलर क्या है, वो जो रेस्टिंग स्टेज में था वो एक्टिव हो जाएगा फिर से। ओके, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते एक और स्टेज होता है
वो फिर वहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं। वो कौन सा स्टेज है जिसमें फिर अरेस्ट हो जाता है? मेटाफेज सेकंड। या ठीक है। तो यहाँ पे ओवरी में जनरली जो एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन यहाँ पे बनता है, वो क्या क्या हार्मोन जनरली होता है इसमें? ओवरिन फॉलिकल्स। ओवरिन फॉलिकल्स मेनली फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग हार्मोन ये बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये फिगर ड्रा हो गया क्या? हाँ ठीक है, ओके चलो। सो इसका 3 अलग अलग हार्मोन होता है जो ये ओवरिन फॉलिकल बनाता है। ओवरिन फॉलिकल, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स। ओके, and during the follicular phase of menstrual cycle के जो follicular stage है, कितने stages होते हैं menstrual cycle में? So follicular stage में estradiol जो है, estradiol वो major steroid hormone secret होता है ओवरी से। ओके, and during luteal phase and the pregnancy progesterone is a major hormone okay, is a major hormone। तो ये 2 स्टेज में 2 अलग अलग कौन कौन सा हार्मोन होता है। मैं पूरा का हार्मोन जो रेगुलेशन होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आई विल बी शोइंग लेटर, and before that we'll briefly discuss about the biosynthesis of different hormones, because it is very important. Sometimes they ask question from here. So basically है क्या अनिस्ता? ठीक है, स्पीड ठीक है अनिस्ता? यस सर। एक कॉमन न्यूक्लियस होता है, मतलब कॉमन न्यूक्लियस वहाँ से ही अदर हार्मोन वहाँ से पर्टिकुलरली डिराइव होकर बनता है। जो एक न्यूक्लियस मतलब एक स्ट्रक्चर, ओके, एक स्ट्रक्चर, उसका नाम है साइक्लोपेंटानो पारहाइड्रो पेनान 3। ठीक है, एक इसमें बोल सकते हो कितने कार्बन है? 5। नहीं, कार्बन के बारे में मैंने पूछा। तो देखो पेनान्थ्रीन न्यूक्लियस, ठीक है, उस पर 4 रिंग होता है, लेकिन कार्बन कितने अमाउंट में, कितना नंबर कार्बन होता है, सो ये देख लेना है, ठीक है। और उसके चलते कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन होते हैं स्टूडेंट्स? कोलेस्ट्रॉल में 27। तो इसमें तो 27 कार्बन नहीं होगा। साइक्लोपेंटानो पारहाइड्रो पेनान्थ्रीन, इसके भी स्ट्रक्चर, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जो है इससे ही डिराइव होकर बन चुका है। ओके, सो ईस्ट्रोजन जैसे ये भी ईस्ट्रोजन इससे ही बनेगा, ईस्ट्रोजन जैसे होगा। कितना ईस्ट्रोजन, कितना कार्बन है? 18 कार्बन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन इसके कितने कार्बन है? 21। प्रोजेस्टेरॉन में 21, राइट, प्रोजेस्टेरॉन में 21। अब ये अगर ये स्लाइड कॉपी हो गया तो मुझे बता देना, मैं एक और फिगर ड्रॉ करूँगा। हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ।
Done, sir. ओके, एक ग्राफियन फॉलिकल का फिगर है ये, देखो तो। इसमें चारों तरफ एक टाइप का सेल है, ठीक है? ये दूसरे टाइप का सेल है इधर। तो ये क्या है, इस लेयर में बोलते हैं थीका लेयर और थीका सेल्स इसमें है। इसमें एक फ्लूइड है विद अंदर, इसको बोलता है क्या, फॉलिकुलर फ्लूइड। ये जो सेल्स है, ये सेल्स होता है ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा सेल्स। ओके, ये होता है क्या, क्यूमुलस सेल्स। ओके, और इसमें ये जो है ये बेसल लेवल है, ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली पूरा का पूरा डिटेल में मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बायोसिंथेसिस कैसे होता है, देखो कोलेस्ट्रॉल एक मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल से एक बनता है एंड्रोस्टेनोइडियन, उससे बनता है इस्ट्राडियोल, उससे बनता है इस्ट्राडियोल एंड बनता है क्या, उसमें प्रोजेस्टेरॉन भी। ओके, सो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बहुत जल्दी, और ये तो इजी वे में हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है कि ये पहले भी पढ़े होंगे ये फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। बोलो, प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? Pregnancy maintain. ठीक से बोलो, बोलो जल्दी। Sir, pregnancy को maintain. प्रेगनेंसी मेंटेन करना ये होता है प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन, एग्जैक्टली। और क्या, during pregnancy it stops lactogenic effect. क्या बोलो? During pregnancy, because high level of progesterone, it stops lactogenic effect. प्रेगनेंसी को, हाँ, तो क्या करेगा, एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन को बोलता है नेचर्स कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट, बिकॉज नो ओव्यूलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग द luteal phase and pregnancy, luteal phase as well as in pregnancy. So progesterone is basically known as nature contraceptive. और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, हाँ, तो उसको ये सप्रेस कर देगा। सो LH जो होता है ड्यूरिंग द ओवुलेशन, ये तो नहीं होगा। ओके, एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, डेसिड्यूलेशन करता है, मतलब वो यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन करता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सर्विस जो म्यूकस होता है उसको थिक बनाता है, स्पार मूवमेंट जैसे उसका एंड थिक एज वेल एज विस्कस टू द हैंडल स्पार मूवमेंट। ओके, सो एज वेल एज जो ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट में इसको उसमें उसके ओविडक्ट का जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है वो भी बढ़ाता है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम जो है, यू नो दैट एंडोमेट्रियम पहले के स्टेज में एंडोमेट्रियम क्या करता है, वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको क्या करते हैं, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन इस प्रोसेस में हेल्प करता है। ओके, सो प्रोजेस्टेरॉन आल्सो लीड्स द इंक्रीज स्पाइरल artery permeability to regulate the supply of blood and other material. Okay, so and sometimes it has the thermogenic effect as also. Okay, because it acts on the pre-optic area which is necessary for the thermal regulation.
तो इसलिए हार्मोजेनिक इफेक्ट भी इसमें देखा जाता है. तो दीज आर द मेन फंक्शन, दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. एंड यू ऑल नो दैट द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एज वेल. क्या है ईस्ट्रोजन का फंक्शन, बोलो. Development of secondary sex characters. यस, और बोलो ईस्ट्रोजन का क्या क्या फंक्शन. तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, ग्रोथ करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एज वेल एज अ मेमोरी ग्लैंड. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है जैसे कि ब्रेस्ट एज वेल एज निपल, उसमें जो डिपोजिशन है ये भी बढ़ाता है. एंड ये क्या करता है ईस्ट्रोजन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ये भी प्रमोट करता है. ओके, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है उसमें जो ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम है उसका एक्टिविटी ये एनहेंस कर देता है. सो यूटेराइन जो ग्लैंड होता है एंडोमेट्रियल ग्लैंड, इसका एलोंगेशन होता है ड्यू टू द ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है उसका एक्टिविटी इंक्रीज करता है, क्योंकि पार्चुरेशन की वजह समय वो बात के हेल्प करता है, राइट. सो ऑक्सीटोसिन तो वो अच्छे से अगर बाइंड करता है, बाइंड कर सकता है किसमें, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर में, तो वो उसका जो फंक्शन है वो अच्छा होगा. ठीक है, तो ये हेल्प करता है ईस्ट्रोजन. एंड दिस इज वन टाइप ऑफ एगोनिस्ट, नॉट एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट टाइप ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन. ओके, और स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके ऊपर भी इसका फंक्शन है, क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या करता है, सर्विस म्यूटस को वाटरी कर देता है, नॉट विस्कस, वाटरी कर देता है, which promotes the sperm transportation as well. Estrogen increases the ciliary movement of the oviduct, thus it promotes the fertilization as well. Okay, because peristaltic movement होता है एम्पुला इसमस जंक्शन में. सो फर्टिलाइजेशन के जगह कौन सा है, कौन सा रीजन में फर्टिलाइजेशन जनरली होता है, fallopian tube के ampulla exactly. Right, now another hormone which is inhibin, right. So inhibin भी secret होता है human ovary से, right. Do you know what is the function of inhibin? Inhibits the secretion of FSH. Exactly. inhibin जो है, inhibin FSH का जो secretion होता है उसको सप्रेस करता है, सप्रेस. सो इट सप्रेसेस द फंक्शन ऑफ FSH. ओके, एंड थीका सेल से कुछ अमाउंट में एंड्रोजन सीक्रेट होता है, उसको भी ये रेगुलेट करता है. ओके, उसको भी ये रेगुलेट करता है. सो यही फंक्शन है मेनली ओवरियन जो हार्मोन्स होता है. सो दीज आर द फंक्शन. स्टूडेंट, प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्लेसेंटा से रिलैक्स. HCG. एग्जैक्टली. सो ACG एक ऐसे इम्पोर्टेंस क्या होता है, ACG का एक इम्पोर्टेंस बताओ. इंक्रीज लेवल ऑफ ACG इन डिटेक्ट द प्रेगनेंसी. एग्जैक्टली. सो प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए ACG एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा पार्ट देख लो जो मैंने पढ़ाया अभी तक. उसके बाद मैं जो टेस्टोस्टेरोन बताओ. প্রোজেস্টেরনটা ন্যাচারাল কন্ট্রাসেপ্টিভ যেটা বলে না, ওটা কেন বলে একটু ডিটেইলটা বলে না, या पढ़. মানে কি করে বাঁচাতে হয়. सो प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन जो होता है, ठीक है, एक बार प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है बोलो, लिटियम থেকে, कॉर्पस लिटियम. तो ल्यूटियल फेज में ये अगर होता है तो उसमें जो स्पर्म का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो इसमें अगर ओवम सीक्रेट हो गया, ओवम रिलीज हो गया, देन प्रोजेस्टेरोन
देन प्रोजेस्टेरोन उसके फॉर्म होगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा, ये सुनो, देन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा। तो उस रीजन जनरली सेफ पीरियड होता है, उस समय जनरली सेफ पीरियड होता है, क्योंकि ये जो कुछ लेयर का चेंजेस करके वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो विस्कस बना देता है, ताकि ये फर्टिलाइजेशन अच्छे से ना हो, ताकि ये फर्टिलाइजेशन अच्छे से ना हो, ठीक है। और अगर प्रेग्नेंट हो गया तो प्रेग्नेंट होने के बाद इसका क्या फंक्शन होगा, कोई बता सकते हैं क्या? बोलो Maintains pregnancy कैसे? by healing of endometrium প্রোজেস্টেরন লেভেল ইনক্রিজ হবে, তাহলে ওভুলেশন ঘটবে না, ওভুলেশনটা বন্ধ করে রাখবে এই প্রেগন্যান্সি টাইমে। एग्जैक्टली, सो फर्दर तो ओवुलेशन ही नहीं होगा। अगर एक बार प्रेग्नेंट हो गया तो ओवुलेशन क्या होगा, और तो नहीं होगा, ठीक है। ठीक हो तो और भी चीज़ें हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो देख लो। মানে যদি কেউ প্রেগন্যান্ট হওয়ার আগে প্রোজেস্টেরন ইনজেক্ট করে তাহলে সেক্ষেত্রে তো ওভুলেশন ঘটবে না। ऐसे नहीं है, देखो वो तुम जो बात कह रहे हो ये डिफरेंट है। जो अगर पीरियड जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको अगर डिले करना है, ठीक है, इसको अगर डिले करना है कुछ देर के लिए, तो उसके लिए प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन पिल वो डिफरेंट फंक्शन में काम करता है, ओके। क्योंकि अगर 28 डेज साइकिल है, ठीक है, तो उसको किसी को मान लो कि एक मान के दो तारीख इसका वो होता है, उसको थोड़ा सा कुछ भी पर्टिकुलर इवेंट्स वगैरह जैसे एथलीट करता है, ठीक है, कोई भी एथलीट करता है ये कि कोई भी रेस होगा वो वही, उसको 8 में लाना है और 10 में लाना है, तो वो इस समय आर्टिफिशियल और सिंथेटिक वे में ये देता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। I think তুমি খাও আমাকে এখন ডিস্টার্ব করো না।